अभी नीचे भी देख के आए। Okay, am I audible? Can you hear me? बेटा आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. So if you remember what we were talking about edges. So we were able to extract edges. सबको याद है ये चीज? So we were using high pass filters to be able to extract edges. अब हमें क्या करना है? We need to link these edges to be able to. So morphology आप लोग का finish हो गया, right? Morphology में topic खत्म है. I will discuss a few more topics. अभी I think classes जो है 25th, 27th. Then अच्छा, your exams for your labs will be held only during your this thing, your final exams time. So when do you have your final exam scheduled? I think तुम लोग का last है 7th या 8th से we are starting with the first. I'm from 21st. So 21st के time पे ही we will take, because you will come for 6 days and उसी time पे हम लोग BTP भी ले लेंगे and उसी time पे हम लोग नहीं BTP अच्छा we'll be doing online. So that's what we decided. So BTP will be held online between this week, you know, 1st onwards to the 7th wala week. We will take BTP online. So, and all your labs will not be online. They will be offline and we will not call you twice. We will call you only once. जब एग्जाम्स के लिए आओगे उसी टाइम पे हम लोग लैब एग्जाम्स करा लेंगे. Is that okay with you people? Yes, ma'am. Yes. So 21st से जो तुम लोग का होगा, I think your exam. So during that time you'll have only one shift of exam, 3 hours. उसी में जब अगले दिन हल्का पेपर होगा, तो we will keep your lab exam for one of these. So lab exam I think 2 का होना है. Python का exam तो lab ही है और एक DIP का lab exam होगा. So उसी टाइम पे we will adjust this. तुम लोग का summer training का भी presentation है ना इस बार? Yes, ma'am. So summer training is not compulsory. What we can do is summer training जिसको दिखानी है, it can be optional. But otherwise what you can do is that summer training का हम लोग जो BTP का evaluation होगा उसी को copy कर देंगे. Is that okay with everybody? Yes, ma'am. So because of corona we can't be we can't be rigid about showing projects and everything. So BTP का ही grade उसी में हम लोग interpolate कर देंगे. Any other doubts? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अपने बाकी सब एग्जाम्स के लिए. So your lab exams will be held only that time and उसके अलावा और कुछ नहीं है. बाकी theory exams तो normally जैसे होते हैं वैसे ही होंगे. मैम BTP मतलब फर्स्ट सेकंड को ऐसे इसे उसी वीक में होगा. BTP जो है ऑनलाइन लेंगे एंड फर्स्ट सेकंड तो नहीं. आई थिंक हम लोग क्या करेंगे 27th ये वाला 4th 5th के आसपास we will keep your BTP. बिकॉज हम लोग के लिए तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, तो स्टार्ट ही हो जाएंगे सेकेंड ईयर के, बिकॉज वी विल हैव ड्यूटीज एंड एवरीथिंग. सो फॉर अस एग्जाम स्टार्ट तो वी आर काइंड ऑफ बिजी बिकॉज वील हैव एग्जामिनेशन ड्यूटीज. सो हम लोग के लिए तो 7th से एग्जाम स्टार्ट हो ही रहे, 7th या 8th जो भी है, राइट. सो वील नॉट बी फ्री. तो हम लोग इवैल्यूएशन उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज एग्जाम्स चल रहे होंगे. और पहले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो वी आर बिजी. सो वी विल कीप इट समवेयर अराउंड 4th and 5th सो दैट तुम लोग का BTP इधर निपट जाए एंड उसके अलावा जो है योर एग्जाम्स जो लैब एग्जाम्स है वो बाद में लेंगे. ओके. अच्छा BTP में अभी तक जो भी करा है तुम लोग ने, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर सिनॉप्सिस
अभी जी, तक सबमिट कर सिनॉप्सिस कई बच्चों ने नहीं सबमिट करी बेटा, तुमने कर दिया होगा बट कई बच्चों ने नहीं सबमिट करा है, तो एटलीस्ट टॉक टू योर फैकल्टी इंचार्जेस फॉर वट एवर यू आर डूइंग. वी आर बीइंग वेरी वेरी रिलैक्स्ड, अदरवाइज बीटीपी में अपने यहाँ एटलीस्ट आईटी डिपार्टमेंट में बच्चे फेल होते हैं. So this time we are giving a lot of leverage, but then grades will suffer. So we will not fail. We will try and make sure that we don't fail anybody. But a D is as bad as an F because D में भी आपकी CPI बहुत down हो जाती है. So I feel a D is worse than an F actually because आपको ना time में chance मिलता है उसको improve करने का और CPI बहुत pull down हो जाती है. So you need to make sure that. Hello. मॉर्निंग सर. सर मैं क्लास में थी. मैं हाँ. So any other doubts? नो मैम. ठीक, तो चलो what we were doing is अब हम लोग क्या कर रहे हैं लाप्लाशियन. मैम हाँ बेटा बोलो. मैम मॉर्फोलॉजी में थिनिंग और थिकनिंग और स्केलेटन वाला जो पार्ट है मैम, वो कोड वाला प्रैक्टिकल. हाँ that you can leave it. It's there's no problem. It will not be asked. ठीक है, so कोई problem नहीं, you can leave that. मैम कैन यू प्लीज शेयर द IP1 नोटबुक ऑफ मॉर्फोलॉजी पार्ट. हाँ ठीक है, I'll share that. Okay. ओके मैम. हाँ. थैंक यू अब मैम. क्या है कि okay, so now let's look at the next part. अभी क्या है, हम लोग segmentation करने की कोशिश करेंगे. So we have our edges. So edges we were getting using. So if you remember Laplacian or Gaussian, Canny, ये सब हमने filters use करे थे to be able to extract edges. अब edges तो आ गए, उनको link कैसे करना है. So we want, अगर हम linking कर देंगे तो क्या होगा, we'll be able to segment also, right? So एक होता है Laplacian of Gaussian को हम blob की तरह use करेंगे, blob detector. तो इसका क्या मतलब है? So we are looking at a circular symmetry and we can also look for lines. So हम लोग क्या करेंगे, पहले we will talk about half transforms. What are we doing is that we have a set of points. You have to understand. जैसे मेरे पास अभी हमने क्या करा, एक probably edges extract करे, तो edges में कुछ इस तरह का ऐसे कोई image आई. Now automatically I want this to detect lines. So these lines should be detected. You know, जैसी भी lines है ये detect हो जानी चाहिए. So once these lines are detected, then I can segment it from the background. So there would be a background in the image. So there's a back image है इधर, उसका background और ये foreground separate हो जाएगा. So I have circle detection. So a half transform is an algorithm which is used primarily for line detection. आगे इसको हम लोग shapes में भी कर सकते हैं, but line detection and circle detection are the simplest of all. So we will try and understand the line detection today. इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो ताकि you are able to understand and then we will look at the practical later. Practical में तो कुछ नहीं है, one line command है, so you will be able to understand easily. Now we will look at two kind of transformations. एक सबको line representation पता है कैसे होता है? Y is equal to mx plus c वाला सबको पता है ना? Right? Yes ma'am. So there are two ways in which we can represent a line. We will look at both of them. So y is equal to mx plus b इधर लिया हुआ है, तो y is equal to mx plus b. Now let's look at this first. I will try and explain this. So अगर हमारे पास एक ग्राफ है, एक इमेज है, इसमें एक लाइन है. So line basically हमें क्या बताती है? So we say that line is the slope. So we say m एक slope होगा and b is the intercept. I hope everybody remembers this. अगर ये x है और ये y है,
So y is equal to mx plus b. M gives me the slope of this line, and b is the intercept on the y-axis. So because when I put x is equal to 0, y is equal to b, so that is why this point is defined. इसको लिखेंगे 0, b. Right? Is it clear to everybody? ये वाला सबको याद है? Y is equal to mx plus b. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now all the lines basically, अगर हम let's consider a point now. So suppose I have one point here and I have another point here. एक point है x1, y1, दूसरा point है x2, y2, right? So I'll be able to write y1 is equal to m, x1 plus b, because they are lying on the same line. That is why m और b same होंगे. Similarly, y2 is equal to m, x2 plus b. Is it correct? Is there any problem in this? Because I have the line, the points on the same line, that is why the same slope and the same intercept I have taken. Now these points should satisfy this particular equation of the line. अब हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं in terms of x and y. Now let's look at this in terms of, अगर इसको हम दूसरी तरह से इक्वेट करें, can I write this line to be b is equal to, अगर y is equal to mx plus b है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, b is equal to minus mx plus y. Can I write like this equation? Yes, ma'am. Right? अब हम लोग ये देखो कि एक हमारा एक b और एक m, अगर हम इस तरह से विजुअलाइज करें, इसको कहेंगे हम हाफ प्लेन और ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन. So I assume a plane with b and m as the values. So इधर b आ गया, इधर m आ गया. अब ये वाली पूरी लाइन जो है, ये एक पॉइंट की तरह दिखेगी. Why? अभी इसका पहले हम पैरेलल ये बनाते हैं. अगर देखो, अच्छा ये m और b कॉमन है, अगर हम इसको इधर विजुअलाइज करें, what happened? इसी से देखते हैं. ओके, सो here we had y and x and here we are looking at m and c. अब अगर y is equal to mx plus c कर दिया है, ठीक है, इन्होंने ये वाला ही ट्रांसफॉर्म ले लो, आगे दूसरे b में कर लेंगे. So now what will happen is, अगर यही वाला पॉइंट, अगर लाइन में को this line, if I want to represent in the c and m, तो एक पर्टिकुलर m1 और c1 के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? y is equal to mx plus c, एक पर्टिकुलर स्लोप है m1 और c1. इज इट करेक्ट? तो अगर मेरे को यही लाइन इधर रिप्रेजेंट करनी है, सो व्हाट वर वी सेइंग, इधर हम कह रहे थे कि इसको लिख देते हैं c is equal to minus mx plus y. Now I am looking at the c and m plane. So C and M plane में अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर M1 है, C1 है, how will I represent M1, C1? It will be a single point on this or not?
Is everybody clear with this? बेटा बोलो तो आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So again, I will recap. It is y is equal to m1 x plus c. If I look at the y and x plane, I will have lots of lines. अगर हम इस तरह से देख रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलर लाइन पॉइंट देखते हैं, इस तरह से एक पॉइंट देख रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल लाइंस हो सकती है उस पॉइंट से पास करने के लिए. और अगर हम एक लाइन देख रहे हैं और उसमें हम ये पर्टिकुलर पॉइंट्स देख रहे हैं, all these points will satisfy y is equal to m1 x plus c or not? Yes, ma'am. And when I visualize this in the m and c plane, क्या होगा? इसको हम बहुत सारी लाइंस होंगी जो एक्चुअली इससे पास कर रही होंगी. एक पॉइंट, ये ध्यान रखो, ओके, वन पॉइंट on x and y plane will represent one line in MC plane and vice versa. ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? Because this is the most important concept behind half transform, that if I have a point here, एक लाइन है मेरे पास पूरी, तो वो लाइन पर्टिकुलर M1 और C1 के लिए होल्ड करती है. So जब भी हम सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, they will always represent a single point here. सारे पॉइंट्स on a line can be represented as a single point here, और इसमें पूरी लाइंस होंगी, मतलब एक्चुअली, क्योंकि क्या होगा, अगर इसको देखोगे, एक लाइन को यहाँ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करा, इन लाइंस को यहाँ पे हम पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अगर एक हमारे पास इस तरह की लाइंस है, एक सिंगल पॉइंट है जिससे ये सारे पास कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज पॉइंट x1 y1 over here. This point will be represented like a line over here in the M and C plane. So a single line is partial domain maps to a single point in the parameter space, और इसको हम half space भी बोल सकते हैं. Why parameters? Because these are the my parameters that I have. और इसको बेसिकली दूसरी तरह से देखने के लिए बस ये you can see y is equal to minus m x plus y. तो it is also a line and it will have a single value m1 c1 जो कि एक point बन गया. Is it clear? So if I have point x1 y1 in this partial domain, then for this point to pass through the line y is equal to mx plus c, ये वाला, I can have infinite number of straight lines. So एक particular point के लिए हमारे पास बहुत सारी lines होंगी which can infinite number of lines that can pass through this particular point. Everybody knows that. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I can have infinite number of straight lines passing through this point. For each of the line, we will have different slope and intercepts. Obviously, कहीं m1 c1 होगा, कहीं m2 c2 होगा, फिर m3 c3. You can have infinite number of such combinations of m and c. We will have different slopes and intercepts. Hence, for such lines, y1 and x1 becomes constant and m and c become variable. तो equation हमने इस तरह से लिख ली. So hence a point in xy plane maps to a line in MC plane. ये समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि हमने क्या करा, इसको ऐसे लिख लिया, c is equal to minus m x1 y1 plus y1. तो अब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी इससे पास करने के लिए, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन से. So point in xy maps to a line in MC plane. So vice versa है, one point in xy plane is one line in MC plane. One line in xy plane is a one point in MC plane. ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? चाहे तो यू कैन वर्क आउट एग्जाम्पल्स इन सी. तो वो अलग अलग लाइन्स देखो, इधर जैसे है y is equal to m dash x plus c dash, ये वाली लाइन है. सो हम लोग लिखेंगे y1 yj ले लिया is equal to m dash x plus c dash, yi is equal to m dash
एक्स आई प्लस सी डैश, तो y और x की वैल्यूज तो चेंज हो रही है बट m और c कांस्टेंट है. सो m डैश c डैश विल बी अ पॉइंट हियर. और जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को, तो हम क्या कहेंगे, c डैश इज इक्वल टू माइनस m x1 xi प्लस yi. सो दिस विल बी अ लाइन, क्योंकि ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनमें ये सेटिस्फाई हुए. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. सो द आइडिया इज कि अगर मेरे पास एक लाइन है, सो मेरे पास अगर पॉइंट्स है, अभी इसको इस तरह से समझो कि सपोज मेरे पास ग्राफ में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन हैव नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस. बहुत सारी लाइंस होंगी जो इससे पास कर रही होंगी, इससे भी बहुत सारी लाइंस होंगी जो इससे पास कर रही होंगी, इससे भी बहुत सारी लाइंस होंगी जो इससे पास कर रही होंगी. बट एक लाइन कॉमन है जो इन तीनों से पास कर रही है. सबको दिख रही है वो लाइन? सो दिस वन सिंगल लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑल ऑफ देम. सो वो वाली इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जो है वो ये वाली लाइन होगी. इज इट क्लियर? यस मैम. सो आई हैव, अगर ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर सपोज ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है, इसको फिर से देखें अलग तरह से. अब इसको मैंने इस वाली लाइन को आई विल रिप्रेजेंट, लेट्स टेक अनदर, ये हो गया CM, ये हो गया y x, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा इस तरह से. मे बी दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दिस लाइन, देन आई रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एज दिस लाइन, एंड देन आई हैव दिस पॉइंट एज मे बी दिस लाइन. एक पॉइंट अपनी अपनी लाइन की रिप्रेजेंटेशन है MC में, बट ये जो कॉमन लाइन है जो इनको पास कर रही है वो एक ही पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बिकॉज ये वाला पॉइंट इन तीनों के लिए कॉमन है, क्योंकि ये एक वो वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो इन तीनों से पास कर रही है. क्लियर बेटा? किसी को डाउट? यस मैम. यस मैम. ओके, सो द आइडिया हियर इज दैट वी कैन हैव, अब हमें कैसे डिटेक्ट करना है, तो हम इसको दूसरी प्लेन में विजुअलाइज करेंगे. हम क्या करेंगे, हम विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे कि कितनी लाइंस मतलब पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से. तो एक अक्यूमुलेटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है. So here try and understand. अभी देखते हैं. This file has become too huge. I think 1400 स्लाइड हो गई है, हैंग हो गया फिर से. ओके, सो हियर वी हैव अ अक्यूमुलेटर का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है. अक्यूमुलेटर में इसको थोड़ा सा और समझाते हैं. आई टेक अनदर एग्जांपल हियर. इसमें देखो तो शायद क्लियर ज्यादा हो जाए. So what we will do is that we will have, अच्छा पहले वही वाला देख लो क्योंकि इसमें रो थीटा वाला लिया हुआ है. So what do we do is that we have an accumulator concept. इसका क्या मतलब है, हम लोग M और C स्पेस को डिवाइड कर लेते हैं ग्रिड्स में. So हमारा जो M और C स्पेस है, इसको हम ग्रिड्स में डिवाइड कर लेते हैं. एंड दिस विल रेंज फ्रॉम M मिनिमम टू M मैक्सिमम, एंड दिस विल रेंज फ्रॉम C मिनिमम टू C मैक्सिमम. अब अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c कंसिडर करें, तो m की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? व्हाट कैन बी द मिनिमम स्लोप ऑफ अ लाइन?
स्लोप पढ़ी है तुम लोग ने, तो मैम स्लोप 1 m की मिनिमम स्लोप Zero. 1 होती है। 0 मैम 0 डिग्रीज। डिग्रीज क्यों? स्लोप क्या होता है? tan ऑफ थीटा। थीटा की क्या रेंज होती है? तो tan ऑफ थीटा का क्या होता है? ग्राफ याद है सबको? tan थीटा कैसा होता है? रुको इधर देख लो, tan थीटा ग्राफ। ये होता है ग्राफ किससे किससे Yes, ma'am. किस तक आता है? क्या होता है रेंज? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। Correct. So you have a range of minus infinity to plus infinity. Similarly, C क्या है तुम्हारा? इंटरसेप्ट। अब टेक्निकली C भी कितना हो सकता है? अरे अरे फिर बंद हो गई। C also can vary from minus infinity to plus infinity or not? Yes, ma'am. Right? So practically अगर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, आई विल हैव टू हैव एन अक्यूमुलेटर रेंजिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सारी वैल्यूज देखने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल है एक पर्टिकुलर लाइन के लिए। आइडिया क्या है अभी मैं बताती हूँ फिर से, इधर बार बार बंद हो रहा है। राइट। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, जैसे सपोज एग्जांपल देखो। सो मेरे पास ये एक पर्टिकुलर इमेज आ गई। नाउ आई विल ट्राई एंड डिटेक्ट लाइंस। ठीक है, लाइंस अब हमारे पास सपोज ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं। हमने क्या करा है, सेगमेंटेशन के बाद हमारे पास पॉइंट्स आ गए एंड पॉइंट से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन सी लाइंस बन रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट्स जब हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि कितने बार एक्यूमुलेटर हमारा सेल हमारा जो है, हमने क्या करा, m मिनिमम टू m मैक्सिमम एंड c मिनिमम टू c मैक्सिमम, इस तरह का हमने एक वो बना लिया ग्रिड। अब हमारे पास जब भी m और c की कोई वैल्यू आएगी, जैसे हमने कहा कि ये वाली लाइन जो है सपोज एक लाइन है, हमारा m और c इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने उसको 1 कर दिया कि ये वाला इसमें 1 है, ये वाले पॉइंट के लिए, ये लाइन के लिए सॉरी 1 आ गया। हमने इधर क्या करा, m और c की हमारी वैल्यूज सपोज m1 c1 है, तो हमने इधर जहां m1 होगा, जहां पे c1 होगा, वहां पे हमने बोल दिया कि एक लाइन जा सकती है इससे। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा, उससे हमें जहां जहां जा रहा होगा, देखो जहां पे हमारे एक्यूमुलेटर होगा, जहां जहां से वो पास कर सकती है वो लाइन, उस पे हमने 1 कर दिया। फिर हमने दूसरा पॉइंट देखा, दूसरे पॉइंट से हो सकता है कहां कहां से जा सकती है लाइन, वो हमने 1 कर दिया। लेकिन हो सकता है ये वाले पे क्रॉस करेगी तो हम इसको +1 कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे भी ये पॉइंट जा रहा था। फिर हमने थर्ड पॉइंट देखा, थर्ड पॉइंट में यहां से पास कर रही थी, जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, यहां से पास कर रहा था, इस वाले में यही पे आ रहा था दोबारा, तो +1 कर दिया। फिर यहाँ पे ऐसे आ गया थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट आया, तो हमने उसकी MNC कितनी वैल्यूज पॉसिबल है उसमें हमने फिर से देखा, तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे फिर से वही पास कर रहा था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो मेरे को ये पता है कि ये यहाँ से 4 पॉइंट जा रहे हैं। सो ये चारों पॉइंट यहाँ पे जा रहे हैं, इसका मतलब जहां पे भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू ज्यादा है, ये वाली लाइन x और y प्लेन में एग्जिस्ट करती है। ये समझ में आया? मैम ये क्रॉस कैसे हो रहा है, ये समझ नहीं आया। ये एक देखो, मतलब एक पॉइंट एक लाइन होगी। नहीं देखो अभी क्या है, अभी पहले स्टार्ट करो। जैसे मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू डिटेक्ट लाइन फ्रॉम द पॉइंट्स। आई हैव पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास m और c में मेरे पास पॉइंट्स हैं, सपोज 4। हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं,
हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं एम और सी की जो इससे लाइंस पास कर सकती हैं। इससे ये वाली लाइन भी पास करेगी, ये वाली लाइन भी पास करेगी और ये वाली लाइन भी पास करेगी। तो जितनी पॉसिबल लाइंस इसे पास कर यस मैम, यस मैम। ठीक है, जितनी पॉसिबल लाइंस हैं वो एम और सी के कॉम्बिनेशंस पे हमने 1 1 लिख दिया। अक्यूमुलेटर मतलब वो ये देख रहा है कौन कौन सी लाइंस पास हो सकती है। तो हो सकता है ये वाली लाइन को हमने, ये वाला कॉम्बिनेशन था, ये वाली लाइन जो इससे पास कर रही थी ये इधर आ रही थी, फिर एक और लाइन कोई होगी जो कहीं और आ रही थी। इस तरह से हमने अक्यूमुलेटर में उनको लिख दिया। फिर इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे भी ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगी ऐसे, यस मैम, इनको भी हम यस मैम। अक्यूमुलेटर में लिख दिया। ये वाली लाइन जो ओवरलैप कर रही है ये एम और सी में +1 करके अक्यूमुलेट होती जा रही है, क्योंकि इससे ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है। समझ यस मैम, बेटा सबको? यस मैम। किसी को कोई Yes, डाउट? ma'am. ओके, सो द आइडिया इज कि हम इसमें से सारी पॉसिबल लाइंस जितनी पास हो रही हैं उनका हम एम और सी वैल्यूज प्लॉट करें। जहां पे भी अक्यूमुलेटर में ज्यादा वैल्यूज आ जा रही हैं उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन बन सकती है विद 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो सपोज 7 है, जैसे इधर हमने करा, अक्यूमुलेटर में मेरे पास 3 का आ गया कि 3 पॉइंट्स तो लाई कर ही रहे हैं इसमें, इसमें 4 पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 5। तो हम एक थ्रेश होल्डिंग करके, व्हेन यू सी द एल्गोरिथम विल बी एबल टू थ्रेश होल्ड कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो इसको एक लाइन मान लो। तो अगर हमने 3 पे सेट कर रखा था थ्रेशोल्ड, सो ऑल दीज लाइंस विल बी ड्रॉन। इज इट फाइन? किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से सोच लो, पूछ लो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेढ़ा है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी। मैम ये एक्यूमुलेटर है क्या मैम? मैम ये जो 3 पॉइंट्स आप ले रहे हो एक लाइन पर उसी को एक्यूमुलेटर बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, उसको नहीं बेटा। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एंड सी। एम क्या है? स्लोप की ऑल पॉसिबल वैल्यूज और सी की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। So you know that there are infinite number of lines which are able to pass through a point. तो m minimum और m maximum हमने assume कर लिया। अभी इसमें यही ड्रॉबैक मैं बता रही थी, ये -infinity to +infinity exist करेगा theoretically, यस मैम। है ना? तो क्या होगा कि अभी ये एल्गोरिथम जहां हमारे पास स्ट्रेट लाइंस आने लग जाएंगी तो प्रॉब्लम आने लग जाती है, बिकॉज कितना आप अक्यूमुलेटर का आप कितना रेंज रखोगे। सो हम लोग एक्चुअली वी मूव ऑन टू द रो एंड थीटा कॉन्सेप्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले कॉन्सेप्ट बस समझ लो कि अगर मेरे पास एम मिनिमम और एम मैक्सिमम डिफाइंड है, सपोज मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एम मिनिमम हमारा मतलब एम की रेंज इज -8 to +8 और सी की रेंज इज -6 to +6। इस तरह से मैंने डिफाइन कर दिया। तो बहुत इजी है, ग्रिड बना सकते हैं हम, है ना? हम -6 और उससे जो है एक ग्रिड बना सकते हैं इधर, एंड वी कैन कीप फाइंडिंग वैल्यूज। इधर से -6 और हमारे पास एक मैश आ जाएगी और हम इतने ही वैल्यूज में रिस्ट्रिक्ट होके हम प्लॉटिंग कर सकते हैं कि भाई ये वाला लाइन कहाँ कहाँ जाएगा। तो मेरे पास हर एक लाइन में एम और सी तो फिक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर मेरे पास पॉइंट Yes, एक ma'am. डिफाइंड है, Yes, right? ma'am. So that point is defined. So I can put in values. Y is equal to mx plus c है. So अगर मैंने fix कर दिया x और y, I can have multiple combinations of m and c which can satisfy this. So मैंने कह दिया कि ये लाइन 1 1 से पास करती है। So 1 1 से पास करने में I know that m और c की वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं जिनसे वो पास कर सकता है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी बाद में कराएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि एम एन सी कैसे निकाल सकते हैं। सो एम एन सी की वैल्यूज आ जाएंगी। सिमिलरली ऐसे 2 1 2 पॉइंट था उसके भी एम एन सी आ जाएंगी और 3 and 3 है सो उसकी भी एम एन सी आ जाएंगी। अब जब हमको प्लॉट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट पे हमें 3 वैल्यूज दिखने लगेंगे, बिकॉज ये तीनों पॉइंट वी कैन सी 1 1 2 2 3 3 ये एक ही लाइन है ना? सो हम लोग को तो दिख रहा है बट कंप्यूटर को नहीं दिखेगा। Yes, ma'am. सो उसको क्या मिलेगा? अक्यूमुलेटर में एक कॉमन वैल्यू मिलेगी एम एन सी की, जहां पे तीनों
कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो वो मैम वो एक अक्यूमुलेटर में पॉइंट वैल्यू ले लेगा, उस लाइन को एक पॉइंट की तरह डिनोट कर रहा है ना एक्यूमुलेटर। यही तो बता रही थी ना मैं कि एक लाइन इज अ Yes, ma'am. पॉइंट इन दिस, यही शुरू से बोल रही थी मैं कि वन Yes, ma'am, लाइन yes, ma'am. समझ इन गया। दिस XY प्लेन इज अ पॉइंट इन दिस एंड और वाइस हाँ वर्सा। ओके। आप क्लियर यस हो मैम गया? समझ गया। यस मैम समझ ओके गया। गुड, ओके ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा कि अब M min एंड M max का रेंज इज टू हाई, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट प्रेफर्ड। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं? रो एंड थीटा। अब रो एंड थीटा अगर हम डिफाइन कर दें, आइलर फॉर्म सबको पता है राइट? इधर क्या होता था, एक्स एंड वाई अगर ऐसे है, सो एंगल अगर हमारा ये थीटा है, अल्फा इसमें दिखा रखा है बट दिस शुड बी थीटा, सो इफ दिस इज थीटा then this is the distance rho, correct? so ये आइलर रिप्रेजेंटेशन सबको याद है, rho is equal to x cos theta plus y sin theta. God, I'll have to make a smaller file and then work on it. So that is why we move to the normal form here. Normal form में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो गया, रेंज ऑफ थीटा इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। थीटा कहाँ से वेरी करेगा, -90 टू +90, बिकॉज अगर हम कोई भी इमेज देखते हैं तो हमारा रेंज कहाँ जाएगा, इधर से लेके ऊपर तक, बस दैट इज द रेंज दैट आई कैन लुक एट। तो थीटा रिस्ट्रिक्ट हो गया एंड रो की वैल्यू क्या हो गई, इट विल डिपेंड ऑन द इमेज नाउ। सो m इंटू n अगर इमेज है तो रो की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम m² + n² का रूट, बिकॉज ये रो मैक्सिमम हो सकता है। ये सबको समझ में आ रहा है? दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ m² + n². So this is your row max and your angle will vary from this to this maximum, क्योंकि एक इमेज में इससे बड़ा इमेज नहीं होगा जब हम ये पॉइंट ले रहे हैं। तो ओरिजिन से -90 टू +90 यहां तक एक इमेज हो सकती है ऐसी। इज इट फाइन? Yes, ma'am. So that is why we prefer the Euler representation of the image. अब इसमें क्या होगा, अगर नोटिस करो तो इट्स एक्चुअली द सेम थिंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, y is equal to mx plus c लिखते थे, अब हम जो हमारा पहले क्या था, m और c प्लेन्स हम बना दे रहे थे, m और c प्लेन्स की जगह अब हम रो और थीटा प्लेन्स बना देंगे पैरेलली। सो यू कैन सी हियर a point x1 y1 in y is equal to mx plus c, इधर तो एक लाइन होगी, इधर एक कर्व की तरह दिखेगा, क्योंकि अगर हम इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, रो क्या हो जाएगा, रो विल बी x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा। और ये किस तरह का हो गया, कोई भी cos और sin को ऐड करोगे तो कैसा हो गया, एनी cos थीटा एंड sin थीटा जब भी ऐड करोगे तो हमेशा एक साइनसॉइडल टाइप का कर्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस है, तो ये कर्व होगा। अब जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो जब वी विल डू अ न्यूमेरिकल आल्सो ऑन बेस्ड ऑन दिस, देन यू विल बी एबल टू प्लॉट आल्सो, ठीक है? तो वो जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, but you just need to understand that this will be a curve right now because it is in the form of adding cos values and sin values multiplied with certain constant values. अब क्या है, अगर हमारे पास q number of collinear points थे in the spatial space, I will have q number of straight lines passing through a single point parameter domain में। इधर हम बात करें m और c में, तो हमने यही देखा था कि एक पर्टिकुलर
इमेज के लिए ये सारी लाइंस अब पास करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से. सो क्यू नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट. इधर क्या हो जाएगा, क्यू नंबर ऑफ साइनसॉइडल कर्व्स बट इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट. होगा वैसा ही, बट नाउ दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट नाउ. तो जैसे एक और कर्व होगा, हो सकता है इस तरह का, और वो जब इंटरसेक्ट करेगा तो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ऐसे बनेंगे कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या अगर मल्टीपल इंटरसेक्शंस है तो मल्टीपल लाइंस होंगी. सो माय MC domain can also be mapped in terms of rho and theta domain. The only difference is that this will be line and this will be a sinusoid. Is it clear to everybody? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा. अब हम लोग क्या करेंगे, we will also take an accumulator here. बट अभी इजी क्या हो जाएगा, बिकॉज थीटा मिनिमम एंड थीटा मैक्सिमम बड़ी इजीली डिफाइंड है. सो थीटा मिनिमम विल बी -90, थीटा मैक्सिमम विल बी +90, एंड रो का मिनिमम विल बी 0, बिकॉज सबसे छोटा पॉइंट वही होगा जो उससे बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, इट्स अ पॉइंट, एंड रो मैक्सिमम विल बी दिस डिस्टेंस. सो अब हमारा जो मैट्रिक्स है ये वाला accumulator का, वो बड़ी क्लियरली डिफाइन हो गया. आई नो आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम -90 टू +90, और हम वैल्यूज किस में फिट करेंगे, इसी में फिट करेंगे. तो अब हम क्या कर रहे हैं, रो इज इक्वल टू एक्स. अब हम पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं. सपोज दिस अ पॉइंट एक्स के cos थीटा प्लस वाई के साइन थीटा. नाउ एक्स के एंड वाई के आर नोन टू मी. मैंने बोल दिया कि 1 1 है. सपोज एक्स के वाई के इज 1 1, मतलब कि 1 1 से ये पॉइंट पास कर रहा है, तो ये तो फिक्स ही हो गया. अब हम क्या करेंगे, cos ऑफ 0 डालेंगे पहले, cos ऑफ 0 साइन ऑफ 0, तो ये 1 आ गया वैल्यू. तो रो इज इक्वल टू 1. तो अब मेरे पास टेबल इस तरह से बन जाएगी, थीटा और रो है जैसे. सो आई नो दिस इज 0 एंड 1, तो जहां पे भी थीटा इज 0, ये मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज रो इज इक्वल टू 0, दिस इज रो इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मेरे को पता है कि ये 0.1 आ गया था. आया कि नहीं आया. अब हमने करा थीटा इज इक्वल टू 1 रख लो, तो थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए हम रो कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके हर एक के लिए हम इधर फिर से पॉइंट्स प्लॉट करते चले जाएंगे. समझ में आ रहा है सबको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से बताऊं. हम आ रहे हैं, आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है, एवरीबडी इज क्लियर. सो आई रिपीट अगेन, आई हैव अ पॉइंट. सपोज मेरे को प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि ये आर दीज कोलिनियर पॉइंट्स और नॉट. सो व्हाट विल आई डू, ये कंप्यूटर करता है, मतलब हम लोग नहीं करते, बट यस कंप्यूटर क्या कर रहा है कि उसने इक्वेशन ले ली है. अब हमारे पास आ गया रो इज इक्वल टू 1 cos थीटा प्लस 1 साइन थीटा. अभी हम रो 1 साइन थीटा 1 ऐसे कर लेते हैं. दूसरा हो गया रो 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा 2. रो 3 इज इक्वल टू 3 cos थीटा 3 प्लस 3 साइन थीटा 3. थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब किससे रेंज करेंगे, -90 टू +90. अब हमने क्या करा, हमने वैल्यूज रखना चालू करा. तो हम क्या करेंगे, इधर एक्यूमुलेटर में जैसे ये -90 है, फिर ये -89 है, -88 है, ऐसे करके पूरा आएगा. फिर यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 3 ऐसे करके टिल 90 है. इस तरह से मान के चलो कि ये हमारा एक्यूमुलेटर में थीटा की वैल्यूज है. सो व्हेन आई पुट -90 हियर, आई विल गेट सम रो 1 की वैल्यू. जो भी रो 1 करस्पॉन्डिंग मिलेगा उधर हमने 1 कर दिया. सिमिलरली फिर हम दोबारा से लिखेंगे, -89 के लिए हमने दूसरा वैल्यू मिल गया.
ऐसे करके हमारे पास ऐसे हर एक वैल्यू के लिए कुछ कुछ वैल्यूज मिलती जाएंगी कि ये यहाँ से पास कर रहा है। रो 2 के लिए भी यही करेंगे। रो 2 के लिए लेट मी टेक दिस। सो ये सपोज सॉरी ये ऐसे आ रहा है। रो 3 के लिए सपोज ऐसे 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 आ रहा है। सो अब मेरे को दिख रहा है कि ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू पे तो तीनों पास कर रहे हैं, बिकॉज इसका वैल्यू 3 हो गया है। यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, तीनों के हिसाब से। सो आई नो दैट 3 पॉइंट्स आर पासिंग थ्रू दिस। सो आई विल से अगर मेरा थ्रेशोल्ड 3 है तो मैं कह दूंगी ये तीनों एक लाइन पे है, इस पे लाइन बना दो। समझ गए? मैम एक बार फिर से समझा Yes, ma'am. दीजिए। क्या कर रहे हैं? अगेन आई विल से आई हैव अ वैल्यू x एंड y आर गिवन टू मी बिकॉज आई नो दीज पॉइंट्स। अब इमेज में पॉइंट्स है। अब एक बार इसको इधर देखो। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। रो एंड थीटा इससे क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। ये सपोज इमेज है मेरे पास। दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। Assume 100 cross 100 image with horizontal line in the middle. अब हमने क्या करा? 2D matrix accumulator बनाया to hold 2 parameters and उसको हमने 0 सेट कर दिया। पहले हम लोग पैरामीटर्स को 0 कर देते हैं सबसे पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम थीटा को हम लोग इधर या तो -90 से +90 चलाएंगे। अगर हमें वैल्यूज इस तरह से रखनी है, ये मान के चलना है। देखो ये तो एक कन्वेंशन सिस्टम है कि कहाँ गया ये। आई कुड अज्यूम ये हमारा 0 0 है। आई कुड अज्यूम दैट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस। या तो हम -90 से 90 ट्रैवल कर रहे हैं, या इसको हमने बोल दिया ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ये भी कर सकते हैं कि नहीं? ये तो कन्वेंशन है। हम किसी भी तरह से रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो हमने बोल दिया कि ये कन्वेंशन है कि हम 0 to 180 इसको चलाएंगे एंगल को। ये 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या करा? 0 to 180 में इसको वेरी करा एंगल्स को। और थीटा हमारा इसमें जो हमारा मैक्सिमम रो होगा वो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। सो रो हमने अभी इसमें हमने नंबरिंग नहीं करी है, बट दिस द कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली डू, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट लुकिंग एट द वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पिक्सेल्स देख रहे हैं। सपोज हमारी पिक्सेल्स हैं इधर। हमने रो एंड थीटा की वैल्यूज इधर रखी। तो हमने पहले थीटा इज इक्वल टू 0 रखा। सो हमारा x और y फिक्स्ड है। सपोज हमने ये वाली पॉइंट ले रहे हैं, तो हमारा 100, ये 0 ये हो जाएगा। सॉरी, दिस विल बी y है अगर ये, तो दिस विल बी 0, 100। अगर ये कन्वेंशन ले रहे हैं कि दिस इज x, दिस इज y, दिस पॉइंट विल बी व्हाट? 0, 100 और नॉट दिस पॉइंट। फिर तो अब 0, 100 के लिए हमने वैल्यूज रखी। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 100। एक को हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू एक्चुअली हमें 50 मिलेगी, बिकॉज ये हाफ मिडवे है। तो ये 50 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? यस और नो? सो 50 यस मैम। और ये इन्होंने एक्चुअली 90 दिखाया है। 90 डिग्रीज के डिफरेंस पे इन्होंने 0 ये वाला कन्वेंशन लिया है और ये पॉजिटिव लिया है। तो देखो अभी हमारा जो कन्वेंशन इमेजेस का देखो टिपिकल यही होता है। आई हैड टोल्ड यू आल्सो इन द बिगिनिंग x एंड y इज लाइक दिस फॉर इमेजेस। अदरवाइज एक्चुअली अगर देखोगे तो कन्वेंशन ये होता है x और y। दिस इज योर एक्चुअल कन्वेंशन यूज्ड इन ओपनसीवी आल्सो। यू हैव सीन दिस। और अगर हम ये कन्वेंशन रखते हैं तो ये 0 डिग्री हो गया हमारा, एंड दिस इज 90 डिग्री। अज्यूमिंग दैट दिस इज x एंड y, देखो ये सब उसी हिसाब से आएगा। जो भी कन्वेंशन लोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। यू विल जस्ट टेक वन कन्वेंशन एंड फॉलो दैट entire convention throughout the numerical. You will get the answer. So right now we are assuming that this is x, this is y, this is 0 degree, and this is varying from 0 to
90 डिग्री हियर, क्योंकि ये 90 तक हम जा रहे हैं। इमेज में हमारा रेंज फिर यहां से यहीं होएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव क्वाड्रेंट ले रखा है। सो हमने 0 to 180, इसको अगर हम चाहेंगे तो इस तरह से इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इमेज हमारी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो उस कन्वेंशन में अगर हम इमेज को ऐसे अगर हमने कोऑर्डिनेट अज्यूम करा है तो इधर नेगेटिव भी एंगल जा सकते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। सो वी स्टार्ट विद 0 डिग्रीज एंड गो अप टू 180 डिग्रीज। हमने 0 जब रखा तो हमारे पास x और y की वैल्यू थी, हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी। रो इज इक्वल टू, आई विल गेट एक्चुअली 50 वैल्यू, बिकॉज इफ यू पुट रो इज इक्वल टू x हमारा क्या था, दिस डिस्टेंस 0 cos this प्लस y sin this, ये वाला पॉइंट आएगा। इसको ये मान के चलो कि 50-90 आ जाएगा। मतलब अगर हम, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसका गड़बड़ हो रहा है इधर, मैं इसको चेक करके बता दूंगी, बट 90 डिग्रीज पे हमारा जो है वैल्यू आएगी इसकी 90 साइन 90 इज 1। अच्छा ठीक तो है, ठीक है, करेक्ट आ रहा है बेटा। सो साइन ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 0, y is 50 साइन 90, so this is 50 आ जाएगा रो, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज 1। सो मेरे पास थीटा और रो की वैल्यू क्या हो गई, थीटा इज 90 एंड रो इज 50। रो थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू 50,90। ये क्लियर हो रहा है सबको ये वाले पॉइंट के लिए? फॉर दिस Yes, ma'am. अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, सो वी विल नाउ टेक ऑल द पॉइंट्स पॉसिबल, राइट। हमने क्या करा है, हमने पॉइंट्स डिस्कवर करे, तो इधर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो पॉइंट्स है नहीं, जहां पे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, तो ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, ये क्या होगा कि अपने अपने तो रो और थीटा वैल्यूज होंगी इनके पास। अब इसमें क्या होगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो पास हो रहे होंगे, तो वो एक हो सकता है इधर से पास हो रहा हो। ये वाली पॉइंट जो है तमाम सारी लाइन से पास करेगी, ऐसे आएगा। और ये वाली लाइन, जो ये वाला पॉइंट है, इसके लिए भी बहुत सारे होंगे, बट यहाँ पे वो बार बार ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ये वाला जो ब्लू लाइन है, ये सारे पॉइंट्स इस पे ओवरलैप करेंगे। सो देयर विल बी अ हाई वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर, बिकॉज दिस विल कीप रिपीटिंग। ये वाला कॉमन पॉइंट होगा, तो ये हमेशा सब में आएगा, तो इसकी एक्यूमुलेटिव वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, राइट। सो सपोज इफ आई हैड 10 पॉइंट्स हियर, सो दिस विल गिव मी अ वैल्यू 10 हियर। ये 10 दिखाने लग जाएगा, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जितनी हैं, ये और तो जगह से पास कर ही रहे हैं, लेकिन कॉमन लाइन सिर्फ एक यही वाली है। एंड यू रिमेंबर दैट वन सिंगल पॉइंट इन रो एंड थीटा गिव्स मी अ लाइन ऑन दिस, सो दिस इज द लाइन। सो अ लाइन इज डिटेक्टेड। सिमिलरली ये अगर डिस्टेंस 25 है, तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी अक्यूमुलेटर से। सो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रो और थीटा, we are varying the theta value, we have this fixed with us, x and y की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, x and y is fixed for us, थीटा हम लोग वेरी कर रहे हैं और रो की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल ले रहे हैं। रो की सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए वहां वहां हिट रख दे रहे हैं, जहां पे कोइंसाइड कर रहे होंगे वहां पे अक्यूमुलेटर मैक्सिमम वैल्यू दिखाने लग जाएगा, मैक्सिमम वोट्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So this is how your this transform works, half transform. अब इसका in the next class I will do the numerical so that you are clear with how to approach the numerical part. ठीक है, फिर उसका लैब कर लेंगे. So I'll stop here.